Thank you. V. Malai. Thank you, Madam. Yes. Today, the handloom sector is facing closure due to problem of facing by it for marketing of their produce. The sector is also not able to realize the profit of their produce because of low demand from the public. Therefore, I would like to know from the Honourable Minister whether the government has any plan to extend helping hand to handloom sector to the market their produce as well as to provide any support to it. Thank you, Madam. Madam Speaker, I will only, with regards to the honourable member's question and the handicraft challenges that are there before me, I will not say that the sector is devoid of challenges. The challenges that have come forth in my observation in the ministry is this, that many a times we have the handicraft sector which is clustered, and then the individual handicrafts, the artisan is not getting benefit, whether it is from a design perspective, a technology intervention perspective, a marketing perspective, or as the honourable member earlier had said, with regards to even online marketing services perspective. I have observed, Madam Speaker, in my tenure in this ministry, that from 2005 onwards to 2015, over 24 lakh artisans in our country have been given individual ID cards. And the ID cards expire on the 30th of December 2016. Our endeavour now through this government is to ensure that the individual artisan is now not only identified on the basis of the craft that they undertake, but also with regards to providing them individual economic benefit, individual educational benefit, marketing benefit, design benefit. It is my endeavour to do this not only at the central government level, but also in conjunction with state governments, because state governments are extremely keen to ensure that handicrafts, artisans, weavers across the country get the long due justice that they truly deserve. And my endeavour is that in that process, even if members of parliament would want to come forth with their advice or their suggestions, I'm more than happy to include them in those conversations, those initiatives and those efforts. Thank you. Question number 365, Srimati Neelam Sonkar. क्वेश्चन नंबर बोलो. हाँ. मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ. पहले प्रश्न संख्या बोलो. 365 मैडम. स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल. आप पूछो. सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से सभी आंसर का जवाब दिया था, और साथ ही ये पूछना चाहती हूं मंत्री जी से कि खानों के निरीक्षण की गुणवत्ता क्या है, पिछले 3-4 वर्षों में खानों के निरीक्षण में क्या कमियां पाई गई है और उसके सुधार का क्या कार्य किया गया. मैं वास्तव में अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदस्य मैडम को और यादव जी दोनों को ही धन्यवाद दूंगा. इतना विस्तार में ये प्रश्न पूछा गया है कि इससे मेरी भी जानकारियां खनन क्षेत्र की काफी बढ़ी, और जो माननीय सदस्य ने पूछा अभी, इसमें इंस्पेक्शन एक लगातार निरंतर चलते रहते हैं. केंद्र सरकार की भी संस्थाएं इंस्पेक्शन करती हैं. हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी लेबर के एंगल से, लेबर की सुरक्षा, सेफ्टी, उनकी वेलफेयर, उनके स्वास्थ्य के बारे में अलग अलग विषय जो माइन सेफ्टी से जुड़े हुए हैं और माइंस एक्ट में जो जो प्रावधान है उसकी इंस्पेक्शन करती है. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस दूसरी एक केंद्र की संस्था है जो मिनरल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट रूल्स के माइनिंग जो हो रहा है, क्या माइनिंग सही साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, कहीं माइनिंग क्लोजर जहां होना है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि माइंस हैपहैज़र्ड मैनर में हो जिससे आगे चल के लोगों की सेफ्टी के लिए या खनन की सेफ्टी में बाधा है. और कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम रहता है कोलरी कंट्रोल रूल्स 2004 और कोल माइंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2011, इसमें किस प्रकार से क्वालिटी मेंटेन हो रही है, जो जो प्रावधान है अलग अलग कोयले के क्षेत्र में, अगेन कोल सेफ्टी, माइन क्लोजर, जो रॉयल्टी भरनी है, सेस भरना है, एक्साइज ड्यूटी, इस सब चीजों के निरीक्षण कोल कंट्रोलर करता है. और एक स्टेट लेवल पे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है जो रूटीन जो स्टेट के विषय हैं कि उनके माइनिंग प्लान्स के हिसाब से माइनिंग हो रही है कि नहीं, टैक्सेस ठीक से पे हो रहे हैं, इन सब चीजों में पाया, अधिकांश जगहों पे ये पाया गया है कि कुछ एरियाज हैं
जहाँ पे तकलीफ थी, बाकी साधारणतः कोयले के खदानों में या बाकी मिनरल्स के खनन ठीक से होती है, उन क्षेत्रों पे विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है कि वहाँ पे गलत तरीकों को कैसे रोका जाए। सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिन खानों की सुरक्षा के लिए घटनाएं अब तक घटी हुई थी, क्या उसमें भी कोई कार्रवाई हुई? और खानों में जो व्यक्ति कार्य करते हैं, कार्य करते समय उनके साथ कोई घटना घट जाती है और शारीरिक रूप से वो विकलांग हो जाते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई योजना या कोई व्यवस्था किया गया है जो जीवन यापन कर सकें अपना? अध्यक्षा महोदय, जो सेफ्टी है वो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खनन क्षेत्र का, माइनिंग का। और हमारी लगातार प्रयास ये रहती है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ज़्यादा कड़े बनाए जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी भारत में लाया जाए। और साधारणतः जो सेफ्टी का रिकॉर्ड है वो सुधर रहा है, माइनिंग आउटपुट बढ़ रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं या किसी का दुर्भाग्यपूर्ण क्षति पड़ती है वो संख्या में कम हो रहा है। लेकिन हमारे सरकार का मानना है कि हमें जीरो टॉलरेंस की तरफ जाना होगा। कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड ऐसे लाए जाएं कि कोई भी व्यक्ति को ना जीवन की ना किसी प्रकार के उनके बदन के कोई भी अंग को कोई क्षति पहुंचे। अगर इसमें किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके सेट रूल्स हैं, सेट प्रावधान हैं, कानूनन भी हैं, कंपनियों के अपने रूल्स रहते हैं, उसके हिसाब से उसका पूरा ध्यान दिया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी। अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है और बहुत ही अच्छा उत्तर प्राप्त हुआ, निसंदेह अच्छा उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरी शंका थी कि संभवतः जो प्राइवेट माइंस हैं और कैप्टिव माइंस हैं संभवतः उनका नहीं निरीक्षण हो रहा होगा, पर इसमें लगता है कि सबका निरीक्षण हो रहा है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा। पर एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि इतनी तीन एजेंसीज हैं जो बहुत माइंस का निरीक्षण करती हैं, इसके बावजूद भी कई जगह पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं समझता हूं कौशल विकास इस देश में इतनी तीव्रता से इतना ध्यान नहीं दिया गया था पहले, और कई लोग गांव से आते हैं, गांव से आके काम करते थे और उनको उस अधिक मात्रा में ट्रेनिंग नहीं होती थी, उसके कारण भी कई जगह एक्सीडेंट हो जाता था। कुछ ये भी हो सकता है कि जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो पुराना चल रहा था, उसकी वजह से एक्सीडेंट होता था। और कई अकारास्मत ऐसा कुछ हो जाए, एक्सीडेंटल कोई कारणों से भी दुर्घटना हो सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज किया जाए। कौशल विकास मंत्रालय के साथ कोयले के क्षेत्र में लगभग 2.25 लाख कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कर्मचारियों के बच्चे, इन तीनों को मिला के लगभग 2.25 लाख व्यक्तियों का कौशल विकास करना और उनका सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू किया है। इसी प्रकार से खनन क्षेत्र में भी और ज्यादा हम कौशल विकास पे और इक्विपमेंट इंप्रूव करने पे ध्यान देंगे। सीके संगमा जी। Thank you, ma'am. Ma'am, I think our honorable minister is aware that the coal mining in Meghalaya has been stopped in the past 2 years because of the NGT ban. And that's primarily because of the safety measures, especially to do with rat hole mining. Ma'am, Meghalaya loses almost about 700 crores in terms of government revenue and about 5,000 crores in terms of money coming into the economy of the state. So it's a huge economic loss to us. Now, ma'am, the NGT ban is there mainly because of the rat hole mining that is taking place. My specific question to the honorable minister is that our region, other technology might not be possible. So therefore, is there any way that the government of India, along with NGT, is planning to find a solution where we can ensure that the mining continues and people and the state does not lose revenue, and at the same time ensure the safety of the people working there? It's a very important issue, ma'am, and if minister can give us some direction in that line, I would be very thankful to him. Yes, madam, I fully appreciate the concerns of the young new member from Meghalaya. He has actually been very, very concerned about this subject for nearly 2.25 years. Ever since I became a minister, we have had a number of interactions with the honorable member, and I must acknowledge that
the way rat mining was being carried out in Meghalaya was truly a matter of concern. The National Green Tribunal has very rightly put a stop to that and has tried to have the state government address those issues. The Ministry of Coal was asked to examine any proposals that the government of Meghalaya puts up to us to improve the quality of mining there, set in safety standards and ensure the health and safety and well-being of the people employed in the mining activity in Meghalaya. We have only very recently, Ministry of Coal has received a proposal on 28th of July, barely 10 days ago, from the government of Meghalaya, while the NGT had given time which has already expired. However, we have approached the NGT for some more additional time, while our coal companies will study the proposal of government of Meghalaya, and I would, and we are sure we'll be able to improve the mining standards. I would only urge the honourable member to ensure that to help us ensure that the government of Meghalaya also, because that is the implementing agency at the local level, ensures that the mining is carried out with the highest levels of safety, particularly when all members are concerned about the safety standards. Thank you. Question hour is over. सदस्यगण मुझे श्री धर्मेंद्र यादव, शैलेश कुमार, के सुरेश, पी करुणाकरन जी, एंटोनियो प्रेम सिंह, चंदू माजरा से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए कार्य में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। ये मामले अन्य अवसर पर उठाए जा सकते हैं, अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है। नाउ पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। 1 मिनट, पेपर्स लेकर श्री पीयूष गोयल जी। Madam, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. आइटम नंबर 4 श्री रामकृपाल यादव जी। महोदया, मैं आज के पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 5 श्री राधा कृष्णन पी। Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers as mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business. आइटम नंबर 6 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी। Madam, I beg to lay the paper mentions against my name in today's revised list of business at serial number 6 on the table of the House. आइटम नंबर 7 श्री जयंत सिन्हा जी। Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House the documents as mentioned against my name at serial number 7 in the revised list of business for today. आइटम नंबर 8 श्री अजय टमटा जी। मैं क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित कागजात को आज की कार्यसूची की संशोधित सूची के अनुसार सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। 9 रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी ऑन एस्टीमेट डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति का 16वां, 17वां, 18वां एवं 19वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ। कमिटी ऑन एब्सेंस श्री पी करुणाकरन जी। Respected Madam, I beg to lay on the table the minutes Hindi and English versions of the 4th and 5th sittings of the committee on absence of the members from the sitting of the House as listed against my name at serial number 10 in today's House. आइटम नंबर 11 कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस श्री रमेश पोखरियाल जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति के 5 प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के संबंध में 36वां प्रतिवेदन। 2, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के संबंध में 37वां प्रतिवेदन। 3, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के संबंध में 38वां प्रतिवेदन। 4, आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध स्वीकार किए गए के संबंध में 39वां प्रतिवेदन और 5वां आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए के संबंध में 40वां प्रतिवेदन। आइटम नंबर 12 श्री भर्तृहरि मेहताब जी। Madam, I beg to present the following reports, Hindi and English version of the Railway Convention Committee. 4th report on role of IRFC and use of SPV methodology in financing development needs of Indian Railways. 5th report on share of railway traffic vis-a-vis road and air transport and evaluation. Thank you, Madam.
Item number 13, Dr. Satyapal Singh. अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 16वीं लोकसभा के 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 14, Dr. किरीट सोलंकी जी. स्पीकर महोदया, मैं आपकी अनुमति से आज अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 7वां और 8वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। Item number 12, श्री वीरेंद्र सिंह जी. संख्या 15 पर मेरे नाम के सन्मुख सूचीबद्ध कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदनों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। Item number 16, श्री वीरेंद्र सिंह जी. अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 16 पर यथा सूचीबद्ध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगे 2014-15 के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन पर आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति यथा सभा पटल पर रखता हूं। Item number 17, श्री अनुराग ठाकुर जी. Madam Speaker, I beg to present the 27, 28, 29 reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Information Technology as listed again my name. Item number 18, Dr. वीरेंद्र कुमार. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 18 में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध श्रम संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन रखने की अनुमति चाहता हूं। Item number 19, श्री प्रहलाद जोशी. महोदया, मैं आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 19 पर यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Item number 20, श्री प्रहलाद जोशी. महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 20 पर यथा सूचीबद्ध अंतिम गई कार्यवाही विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति एक प्रति मैं सभा पटल पर रखता हूं। Item number 21, श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी. The Committee on Chemicals and Fertilizers as listed against my name at serial number 21 in today's order paper. Thank you. Item number 22, श्री राकेश सिंह जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 23, श्री रमेश बैस. महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 23 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 2015-16 का 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Item number 24, श्री रमेश बैस. महोदया, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति 15-16 के 4 विवरण सभा पटल पर रखता हूं। Item number 25, श्री तावरचंद गहलोत जी. अध्यक्ष महोदया, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 25 पर मेरे नाम के समक्ष वर्णित वक्तव्य को मैं सभा के सदन पटल पर रखता हूं। Item number 26, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी. Madam, with your permission, I wish to lay the status of implementation of the recommendations contained in the 117th report of the Standing Committee on Commerce on demands for grants 2015-16 demand number 12 pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, and also the status of implementation of the recommendations contained in the 120th report of the Standing Committee on Commerce on action taken by the government on observations and recommendations contained in the 117th report of the Committee on demands for grant 2015-16 demand number 12 pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Item number 27, Sri Jayant Sinha ji. To lay a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 225th report of the department related
Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the demands for grants 2015-16 pertaining to the Ministry of Civil Aviation. Shri Bhartulari Mehta. Yes. A bill has been listed today, Madam, about citizenship, the Citizenship Amendment Bill 2016. It is a very important bill, no doubt, though last year we had also passed a citizenship bill. This is a new bill. And it needs proper scrutinization and in detail. It concerns a large section of our population. And it also concerns the very feeling of every Indian. Because India, from time immemorial, has been accepting people who are persecuted because of their religious belief in open arms. We have accepted people from all quarters of this world. And here is a case where specific instances have been listed in this bill. Therefore, my submission before you and through you to the government is to allow a joint committee, because it needs proper and focused attempt to be made in a time-bound manner. I would first prefer that it should go to a standing committee. But as the nature of this bill is very important, my suggestion would be form a joint committee so that in a time-bound manner this bill can come to this House for consideration and for approval. That is my request, Madam. On the same issue, Madam, we would like to put our point across also. इस बिल का समर्थन कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से भी करती है और जैसे अभी मेहताब साहब ने कहा, भारत ने सदैव अपने देश में दूसरे देशों में जिनके विरुद्ध कार्य किए गए हों उनको सदैव हमने अपनाया है। लेकिन जो नियम बनाया गया है, जो अमेंडमेंट रूल्स बनाए गए हैं सितंबर 2015 के, उसमें जो नियम के आधार पर बहुत विसंगतियां तय हो गई हैं कि जैसे व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि वो 6 साल से कब से भारत में रहा है, उसको बताना पड़ेगा कि उसकी पात्रता क्या है राष्ट्रीयता की दूसरे देश की, तो ये सब विसंगतियां ये है और आसाम अकॉर्ड का भी मामला है। तो हम चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह से हाउस इस पर चर्चा करे, स्टैंडिंग कमेटी में ये मामला जाए या जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में मामला जाए, उसमें हम सब अपने तरफ से अपना मत दे पाएं और उसके आधार पर फिर ये बिल सदन में पेश किया जाए। तो मेरा भी एक विनम्र अनुरोध है सरकार से, जैसे मेहताब साहब ने कहा कि हमारी पहली प्रेफरेंस है स्टैंडिंग कमेटी और या तो कम से कम जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में ये बिल जानी चाहिए ताकि उसमें हर दल के व्यक्ति का मत रख पाए हम लोग और उसके आधार पर अमृत के आधार पर जो निकल पाए निचोड़ वो फिर इस सदन में हम ला पाए। महोदय, भर्तृहरि महोदय जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मैं कंटेंट में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक तरफ तो ये पहलू है कि जो प्रोसिक्यूशन हो रहे आस पड़ोस के देश में धार्मिक कारण से उनको हम नागरिकता देंगे। दूसरे सवाल, नागरिकता का सवाल इतने सेंसिटिव है, हम आसाम में जानते हैं बरसों से वहां पे एजिटेशन और बहुत से अभी तक मुद्दे रह गए। बहुत से लोग हमारे देश में हैं नागरिकता रहित हैं जो आगे हैं। फिर इलीगल माइग्रेंट का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार जिस भी मंशा से ले आए हो, आज अब विरोधी पक्ष में सहयोग करने के लिए तैयार है तो इसे ज्वाइंट कमेटी में भेजा जाए, समयबद्ध आप कर दें और उसके बाद हर पहलू को इसको देखा जाए और फिर कानून लिया जाए। इसको जल्दबाजी का कोई जरूरत नहीं है। नागरिकता का कानून बहुत सेंसिटिव मामला है। सुदीप जी, in a matter of confusion, I think most of the opposition parties have jointly raised their voices. So I also agree with Bhartulari Mehta, which he proposed, and Jyotiraditya ji also supported that let it be go to the joint select committee, through which the discussion can be in a better way, and make it a time-bounded program, that when it will start and when it will finish and when it will be tabled, and we can go for the further discussions. Okay. Yes. महोदया, इस सदन के सम्मानित सदस्य भर्तृहरि जी महताब, ज्योतिरादित्य जी और हमारे मोहम्मद सलीम और सुदीप बंदोपाध्याय जी ने जो इस सिटीजनशिप एक्ट का जो अमेंडमेंट ये बिल है इसके संबंध में सुझाव दिए हैं, यदि सदन पूरा सहमत है तो ज्वाइंट कमेटी को इसे रिफर किए जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यदि सदन सहमत हो और आपकी इजाजत हो तो आज ही इस संबंध में मैं मोशन मूव कर दूंगा। करे तो अच्छा रहेगा।
Now calling attention Sri Yogi Adityanath ji. अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात रखो तो मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर अपना एक वक्तव्य दें। देश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम। Honorable members will recall that on 29 July 2016, while replying to the Parliament question on vector-borne diseases in the Lok Sabha, I have apprised the House regarding the situation. आप ले भी कर सकते हो। I'll lay the statement on the table of the House. I'll lay my statement on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने काफी विस्तार से इंसेफ्लाइटिस से देश के अंदर उत्पन्न स्थिति के बारे में यहां अवगत कराया है। मैं उनका धन्यवाद दूंगा और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों की जो लड़ाई थी, अभी 22 जुलाई को उन्होंने गोरखपुर में जाकर के एम्स की स्थापना का शिलान्यास गोरखपुर में किया है, लेकिन अभी जो मौतों का सिलसिला वहां प्रारंभ हुआ है फिर से, मैं उस ओर आपके माध्यम से सदन का और मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वास्तव में जो इंसेफ्लाइटिस है यह दो प्रकार से है, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, दूसरा वाटर बॉर्न डिजीज है। इस मामले में बचाव, इसका उपचार और इसके उन्मूलन, इन तीनों के संबंध में मैं मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि 1998 से लगातार इस सदन में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं, लेकिन ये जो बीमारी आई है पहली बार 1956 में देश के अंदर तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद पश्चिमी बंगाल होते हुए 1978 में बीमारी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। महोदय, आज की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम तो बहुत सघन रूप से इस बीमारी की चपेट में आई हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर ये सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं और लगभग 35-36 जनपद कम या ज्यादा मात्रा में इससे प्रभावित हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, पश्चिमी बंगाल का मालदा है, जलपाईगुड़ी है, कूच बिहार है, दार्जिलिंग है, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर है। तो असम के अंदर बारपेटा है, बक्सा है, दरांग है, डिब्रूगढ़ है, जोरहट है, कामरूप ग्रामीण और कामरूप मेट्रो, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, ये तमाम जिले ऐसे हैं जो बड़ी बुरी तरह इंसेफ्लाइटिस से किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं और मासूम बच्चों की जान वहां पर जा रही है। मैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताऊं तो 38 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से लगातार मौतें हो रही हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब राज्य सरकारों की स्थिति को मैं देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे वे किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है। दूसरा, कोई ठोस इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को आज तक हम घोषित नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण लगातार मौतों का एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां 35-36 जनपद मैंने बताए हैं, वहीं पूरे देश के अंदर 19 राज्यों के
लगभग 170-171 जनपदों में बीमारी आज के दिन पर देश के भविष्य को निगलती हुई दिखाई दे रही है। महोदय, ये स्थिति तब है जब इस देश के अंदर दलितों के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर, किसानों के नाम पर, गरीबों के नाम पर तमाम प्रकार के वायदे और घोषणाएं होती हैं। और ये दुखद सच्चाई है कि इस बीमारी से मरने वाले जो बच्चे हैं वह दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 95 से 99% बच्चे इस समुदाय से आते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद अब तक कोई ठोस इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का कोई भी कार्यक्रम घोषित करने में विफलता दिखाई देती है। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है इस बीमारी के बारे में। मैं आंकड़े आपके सामने अगर प्रस्तुत करूं तो 1978 से लेकर के और आज तक के आंकड़े मेरे पास हैं अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के। माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 757 मामले इंसेफ्लाइटिस के सामने आए हैं और पूरे देश के अंदर जो इंसेफ्लाइटिस के मामले अब तक हैं अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, गोरखपुर क्या बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है उस कॉलेज में अब तक लगभग 460 से अधिक मरीज इंसेफ्लाइटिस के आ चुके हैं। उनमें से 125 बच्चों की मौत हो चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अन्य जिला चिकित्सालयों या निजी चिकित्सालयों में जिनका उपचार हो रहा है, जिनकी मौतें हो रही हैं, उनके कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि सर्विलांस का अभाव है और सूचनाओं का कोई भी ऐसे कलेक्शन का आधार नहीं बनाया गया है। ये जो आंकड़े हैं अगर आप देखेंगे महोदया तो 1978 से लेकर के 2004 तक इस बीमारी की संख्या कम थी। 2004 में जो आंकड़े हैं वह 2004 से पहले हम लोग देखते थे कि 2004 में केवल 876 पेशेंट आए थे जिसमें 215 की मौत हुई थी। महोदय, 2004 के बाद अचानक इसने 1000 के आंकड़े क्रॉस किए और 2005 में 3532 पेशेंट आए थे जिसमें 937 की मौत हुई और 2014 में 2190 मरीज अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए जिसमें से 604 की मौत हुई। और इस बार की जो आंकड़े हैं जो मैंने आपको अभी आपके संज्ञान में लाया है कि 125 बच्चों की मौत अब तक अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है। इसका सबसे दुखद पहलू है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार करोड़ों रुपया प्रदेश सरकारों को देती है, लेकिन स्थिति यह है कि इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले जो बच्चे मरते हैं वे दवा के अभाव में मरते हैं, प्रॉपर उपचार के अभाव में मरते हैं। वहां पर कोई सुविधा उन लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाती है। किसी भी प्राथमिक, किसी भी सामुदायिक और किसी भी जिला चिकित्सालय में उपचार की व्यवस्था नहीं। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जिला चिकित्सालयों में छोटे बच्चों के आईसीयू का निर्माण करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई। एक भी जिला चिकित्सालय अपने यहां इंसेफ्लाइटिस के मरीज को भर्ती नहीं करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश दिया था कि इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए गोरखपुर में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोला जाए, जिसके माध्यम से इंसेफ्लाइटिस और ये जितने भी वेक्टर बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज हैं इनके शोध और इनके उपचार और फिर इनके उन्मूलन की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकें। दुर्भाग्य है कि शोधवश वह गोरखपुर में नहीं खोल करके लखनऊ में खोला गया और वह काम भी नहीं कर रहा है। यह स्थिति प्रदेश सरकार की उसी प्रकार से थी कि जैसे लोग प्यास से मर रहे हों, जब मौतें प्रारंभ हों तो सरकार कुआं खोदने के लिए जाती है, लेकिन कुआं भी वहां खोदती है जहां पर लोग प्यास से मर रहे हैं, वहां नहीं कहीं अन्यत्र। और यह स्थिति वहां पर देखने को हम लोगों को इस मामले में मिली। महोदय, गोरखपुर में 2007 में एनआईवी पुणे की एक यूनिट खोली गई
उसका काम था कि वह जितने भी, क्योंकि वहां पर हर वायरल डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज और वेक्टर बॉर्न डिजीज दोनों प्रकार की, चाहे वह इंसेफ्लाइटिस हो, मलेरिया हो, फाइलेरिया हो, डेंगू हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, ये सारी की सारी बीमारियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के उस भूभाग में बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। और इसीलिए वहां पर एक एनआईबी पुणे की एक यूनिट खोलने के बारे में कहा गया था। भारत सरकार ने 2007 में यूनिट तो खोली, लेकिन वो यूनिट कोई कार्य नहीं कर पा रही है, क्योंकि वह यूनिट जो गोरखपुर में खुली वह केवल एक हाई पैथोलॉजी लैब के बराबर ही काम कर पा रही है। यह वहां की स्थिति है। 2011-12 में इसी सदन में लगातार इस मुद्दे को उठाने के बाद भारत सरकार ने 5 मंत्रालयों का एक समूह गठित किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन समन्वय मंत्रालय, इन 5 मंत्रालयों को मिलकर के इस बीमारी के उपचार के बारे में एक ठोस योजना बनाने के लिए कहा था। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि गोरखपुर में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की टीम जाती है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी जाती है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी अटलांटा की टीम जाती है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की टीम जाती है। लेकिन महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि 1978 से लेकर के अब तक इंसेफ्लाइटिस का कोई उपचार कोई टीम नहीं ढूंढ पाई है। यानी वहां के मासूम बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे गिनी पिग्स हों, वे एक प्रयोगशाला बन गए हों, और केवल टीम जाती है, विजिट करके चली आती है, कोई परिणाम उसके बाद सामने नहीं आ पाती है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इस देश ने पोलियो उन्मूलन को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम को संपन्न किया है। इस देश ने 1977 में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन किया है। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए कोई राष्ट्रीय प्रोग्राम क्यों नहीं? सरकार के स्तर पर इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए कोई ठोस कार्य योजना घोषित क्यों नहीं हो पा रही है? महोदय, स्वाइन फ्लू और वर्ल्ड फ्लू देश के अंदर फैलता है, टीवी में विज्ञापन आते हैं, समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन हम लोग देखते हैं, लेकिन जबकि स्वाइन फ्लू और वर्ल्ड फ्लू से मरने का जो रेट है वो मात्र 2% है, और इंसेफ्लाइटिस से मरने का जो रेट है वो 25 से 35% होने के बावजूद कोई विज्ञापन नहीं, कोई सर्विलांस का कोई कार्यक्रम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जागरूकता अभियान इस मामले में नहीं। भारत सरकार के स्तर पर कुछ अच्छे प्रयास हुए थे, जैसे जेई का। महोदय, इसके जो वायरस हैं, एक जो मच्छरों से फैलता है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस है। 2006 से वहां वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। वैक्सीनेशन का परिणाम था कि जेई 36% से घट करके 4% तक पहुंचा है। उसका संपूर्ण उन्मूलन अभी नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन अन्य जो एंट्रोवायरस है, जिससे इस समय सर्वाधिक मौतें हो रही हैं, उसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई उपचार नहीं। यह मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि आखिर यह स्थिति क्यों बनी हुई है। सीआरसी यानी कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर में स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वहां पर घोषणा की थी। अब तक राज्य सरकार से जमीन न मिलने के कारण कंपोजिट रिहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर में स्थापित नहीं हो पाया है, जिससे जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं इंसेफ्लाइटिस के बाद, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। अब तक वह कार्य वहां नहीं हो पाया है। उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं है, छिड़काव, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छता भी नहीं है। ट्रामा सेंटर, महोदय, भारत सरकार के स्तर पर एक ट्रामा सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खोला गया था, इस शर्त के साथ कि 3 साल तक उसके रखरखाव और उसमें जो कर्मचारी रखे जाएंगे उसका खर्चा भारत सरकार देगी। पिछले वर्ष ट्रामा सेंटर का कार्य पूरा हो चुका है। भारत सरकार का 3 साल का कार्य भी पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को निकाल दिया है और ट्रामा सेंटर बंद हो गया है। यह वहां की स्वास्थ्य के प्रति सरकार की संवेदना को प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से वहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि एक गोरखपुर के वायरल रिसर्च सेंटर के उच्चीकरण के बारे में, जिससे जितनी भी बीमारियां मैंने बताई हैं, इंसेफ्लाइटिस है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है,
इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, कौन सा वायरस है और फिर उसके उपचार के बारे में। गोरखपुर के जो वायरल रिसर्च सेंटर जो एक हाई पैथोलॉजी लैब बनकर के रह गया, उसका उच्चीकरण होना आवश्यक है और एनआईवी पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में एक रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर की स्थापना हो। मंत्रालय ने इस दिशा में कार्य किया है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आपने सैंक्शन किया है, उसको स्वीकृति देकर के उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जैसे फाइलेरिया को, जैसे घेंगा को, जैसे मलेरिया को नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, जिससे भारत सरकार अपने स्तर पर इनके उपचार, इनसे बचाव और फिर इनके उन्मूलन की दिशा में कार्य कर सके। क्या इंसेफ्लाइटिस को नोटिफाइबल डिजीज घोषित भारत सरकार करेगी? महोदय, गोरखपुर का बाल रोग विभाग, बस मैं प्रश्न पे ही आ गया हूं। गोरखपुर का जो बाल रोग विभाग है, जहां पर इन सभी बच्चों का उपचार होता है, वहां पर एमडी और जो स्नातक पीजी की जो सीटें थी, एमडी और जीसीएच का, वो 6 सीटें थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज सभी मानकों को पूरा करता है। एमसीआई ने बाल रोग विभाग में 6 सीटों की मान्यता समाप्त कर दी, केवल 1 सीट वहां पर रखी है, जबकि सारे मानक बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूरा करता। क्या एमसीआई को यह मनमानापन करने की छूट दी जानी चाहिए? क्या सरकार इस दिशा में कार्य करेगी? पीएमआर फिजिकल एंड मेडिसिन रिहेबिलिटेशन सेंटर जो गोरखपुर का है, उसमें जो कर्मचारी रखे गए संविदा में रखे गए हैं, संविदा में रखे गए कर्मचारी प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उनको 1-1 साल तक मानदेय नहीं मिल पाता है। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि उसके उच्चीकरण के साथ साथ उन कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था वहां पर होगी। और नंबर 5, इंसेफ्लाइटिस वार्ड में प्रदेश सरकार ने 62 कर्मी संविदा पे रखे हैं और भारत सरकार ने एनएचएम के अंतर्गत 164 कर्मचारी वहां पर संविदा पे रखे हैं। संविदा में मिलने वाले इन कर्मचारियों को जो मानदेय मिलता है वो अधोमानक है। 4th क्लास के कर्मचारी को कहा जाता है कि 1500 रुपए में 8 घंटे ड्यूटी करे। क्या ये संभव हो पाएगा? अधोमानक है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो संविदा में रखे गए कर्मचारी हैं, इनको नियमितीकरण करना और नियमित इनको मानदेय वहां पर प्राप्त हो, इस दिशा में कार्य करने। और अंत में इस बारे में कि सर्विलांस के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस के उपचार का प्रत्येक जिले में प्राथमिक, सामुदायिक और जिला चिकित्सालयों में इसके उपचार के साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के बारे में क्या भारत सरकार अपने स्तर पर अब कदम उठाएगी? धन्यवाद। जगदम्बिका